Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In lesson number 3, we learned these two words which I'm going to explain. One of them is Allah, it means beware, or in Urdu we say khabardar. And I gave the example of chapter 2, verse 13. And another word we learned was Allah. So on the face of it, it seems similar, but this is one word, Allah. Not and la, but this word one word is Allah. The second one is also Allah, but this is la. So here this hamza uh, and la, uh, it means that not, or in Urdu kya nahi. So it's giving meaning of asking a question, and la not. So Allah, and the example is from chapter 9, verse 13, that Allah tuqatiluna, here question is being asked that will you not, tuqatiluna, or means will not, tuqatiluna, you fight. So here Allah has two letters or two words, and la, but here Allah is just one word, Allah, please beware and have your guards. Khabardar, yani you should be cautious about something. But mistakenly, I forgot to add a similar sounding word, Allah. So Allah is composed of an and la, and an means that, and la means not. So it's Allah. So you see here, it is Allah, and there is no shadda over lam. Again, Allah, no shadda over lam. But here it is Allah. So here the noon is omitted in writing the complete word, and its sound is also missed, but it is actually Allah. So Allah means that not, that not. So because an means that, and la means not. So here Allah is not used to ask a question, but it is saying that not, Allah. And the example is from chapter 2, verse 230. Fa, therefore, in, if, khiftum, you are scared or you have fear, Allah, that not, yuqima, both of you, observe, hudud Allah, the limits of Allah. So Allah means that not, Allah, that not, and it is composed of an and la. And another similar sounding word is illa, and many of us know it is very common. Illa means except, sivai. La ilma lana illa ma allamtana. La, no, ilma, knowledge, lana, for us. You know, la means for, lana, for us, illa, except ma, whatever, allamta, you taught, na, us. तो हमने जो तीसरा सबक है उसमें हमने ये अल्फाज पढ़े थे। ये अला, इसका मतलब है खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ। किसी को वार्न करने के लिए होता है, किसी को खबरदार करने के लिए होता है अला। और ये एक लफ्ज़ है, ये और ला से मिलकर नहीं बना, बल्कि ये अपनी ज़ात में एक लफ्ज़ है, अला, खबरदार हो जाओ। और इसकी मिसाल मैंने बताई थी, सूरह अल बकरा की आयत आयत नंबर 13 है। सूरह 2 नंबर है और आयत नंबर 13। अला, खबरदार हो जाओ, इन्नहुम, यकीनन वो, हुमुल फासिदुन, वही हैं जो फसाद करने वाले हैं। और दूसरा लफ्ज़ हमने सीखा था अला, ये अ और ला से मिलकर बना है। ये दो अल्फाज हैं। अ जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ला का मतलब है नहीं, अ ला, क्या नहीं। और इसकी मिसाल मैंने बताई थी, सूरह 9 नंबर की सूरत है और 13 नंबर की, इसमें आयत है, अला, क्या नहीं, तो कातिलूना, तुम जंग करोगे। सो क्या, ला नहीं,
तुकातिलूना, तुम जंग करोगे। आज हम उससे मिलते जुलते, और मैं पिछली दफ़ा गलती से ये जो दो अल्फाज हैं जो उसी तरह की उनकी आवाज़ निकलती है, तो वो मैं भूल गया था, वो उसमें हम इसको ऐड कर लेते हैं। यह है अल्लाह। अल्लाह जो है, ये अन और ला से मिलकर बना है। अन का मतलब होता है के, अल्लाह के नहीं। तो जब ये लिखा जाएगा जोड़कर, मिलाकर, तो इसको ऐसे लिखेंगे अल्लाह। ठीक है, अल्लाह। लेकिन नून की आवाज़ नहीं आएगी, नून लिखा भी नहीं जाएगा। लेकिन असल में ये अन और ला से मिलकर बना है, अल्लाह के नहीं। और इसकी मिसाल ये है, सूरह बकरा की आयत नंबर 230 है। फ, पस, लिहाजा, इन, अगर, खिफ, तुम खौफ करो, अल्लाह के नहीं, के नहीं, अल्लाह के नहीं, युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हदूद अल्लाह, अल्लाह की हदूद को, अल्लाह, युकीमा। ठीक है, तो ये दो अल्फाज हैं जो आज हमने सीखे। उनकी आवाज़ वैसे ही निकलती है जैसे अला और अला की है, लेकिन इसमें जो है वो अल्लाह है। और फिर जो आखिरी हरफ है आज का, जो लफ्ज़ है, वो है इल्ला। और इल्ला का मतलब है सिवाय। ये बहुत से लोग जानते हैं हमें से। तो इल्ला, ये सूरह अल बकरा के आयत नंबर 33 है। ला, नहीं, इल्मा, इल्म, ल, ना, हमारे लिए। आपको पता है ला का मतलब, एक मतलब होता है के लिए, ना हम, ला, ना, हमारे लिए, इल्ला, सिवाय, माँ, जो कुछ भी, अल्लमता, तूने सिखाया, ना, हमको, अल्लमतना, तूने हमको सिखाया। तो ये दो अल्फाज हैं जो आप याद कर लें। और इसलिए मैंने उसको दोबारा रिपीट किया कि क्योंकि इनकी आवाज़ एक जैसी है, तो आपको इसको सीखने में आसानी होगी। तो इंशाल्लाह अगले सबक में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।